Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will continue with the grammar series and our next topic is past tense. So let's start. So first of all, we will understand what are tenses. So tenses are the means by which we indicate the time for the action. Basically, we have three time phrases: present, past and future. So past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Today we will do all these forms. So let's start. First of all, we will start with past indefinite or past simple tense. Okay. So past indefinite have two names, past indefinite and past simple. Okay. So what is past tense? The past indefinite tense is a tense used to express a state or action that occurred in the past. Usually, the exact time of the action or state is not specified in the sentences. So, past time वो टाइम है जो एक्सप्रेस करता है कि एक्शन पास्ट में हुआ है, ठीक है, बट उसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक्शन के लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है. इंडेफिनिट मीन्स टाइम नॉट क्लियर, नॉट फिक्स्ड. ओके, so let's start. Let's take some example. We learned English at school. Means हमने स्कूल में इंग्लिश सीखी, लेकिन कौन से टाइम में सीखी, ठीक है, इसका फिक्स टाइम नहीं है. He killed a snake. Okay, this activity happened in the past, but time is not clear here. Okay, so it is past indefinite tense. Okay, he killed a snake. उसने सांप को मारा, बट कब मारा नहीं पता. उसने पास्ट में मारा, लेकिन पास्ट के कौन से पर्टिकुलर टाइम में उसने उसको किल किया इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है. सो माई फादर टॉट इन दिस स्कूल. मेरे फादर स्कूल में टीच करते हैं, ठीक है, बट दिस इज शोइंग दैट इट इज पास्ट, दैट एक्टिविटी हैपेंड इन द पास्ट. ओके, बट time period is not clear here, no specific time is clear here. Okay, so this is past indefinite tense. So past indefinite to denote a habitual action in the past. ठीक है, past indefinite tense जब हम past की habitual action को denote करते हैं, past की habitual action को बताते हैं, उसके लिए हम past indefinite का यूज करते हैं. ठीक है, example, he came to me every morning. ठीक है, कि every morning मेरे पास आता था. ठीक है, this is showing that action happened in the past. Okay, but this is showing that this happened in the past and this is habitual action. Okay, क्यों मेरे पास हर रोज आता था, ठीक है, हर रोज मॉर्निंग में आता था. So ये habitual action बता रहा है कि पास्ट में habitual action है, तो means this is past indefinite tense. Okay, he never tell a lie, कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था. ठीक है, so this is showing action of past. Okay, and this is showing the habitual action. ठीक है, habitual action बता रहा है. So this is past indefinite tense. So he studied many hours every day. Means वो every day many hours study करता था. ठीक है, so ये past activity बता रहा है, ठीक है, और ये habitual activity बता रहा है. So this is past indefinite tense. Okay, so let's understand the formula of past indefinite. Okay, subject plus verb to plus object. Okay, so he is subject here, played verb to of play. Okay, cricket is the object here. Okay, he killed a snake. उसने सांप को मारा. ठीक है, उसने स्नेक को किल किया, बट कौन से स्पेसिफिक टाइम में किल किया. पता लग रहा है कि ये पास्ट में किल किया, लेकिन कौन से स्पेसिफिक टाइम में किल किया, वो टाइम जहां पे क्लियर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट. ओके, यूज डिड इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वहां पे हम डिड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही किल अ स्नेक. ओके, यूज वर्ब वन इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. ओके, इफ देर इज यूज ऑफ डिड इन द सेंटेंस, यूज वर्ब वन. ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब वन का यूज करना है. ठीक है, मीन्स हमारी जो मेन वर्ब है उसको वर्ब वन में लिखना है. ठीक है, बिकॉज रिमेंबर, इफ देयर विल बी डिड इन द सेंटेंस. ओके, इफ योर सेंटेंस इज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, देन यूज मेन वर्ब वन. ओके, योर मेन वर्ब विल बी वर्ब वन. ओके, एग्जाम्पल, डिड शी सिंग. ओके, इन सिंपल, जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
शी सैंग, ओके, वर्ब टू हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ओके। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड सी सैंग, डिड सी सिंग, ओके। सो सैंग का यूज नहीं करेंगे, हम सिंग का यूज करेंगे, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव में जब डिड का यूज होता है, ठीक है, तो जो आपकी मेन वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, वर्ब वन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सिंग, सिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये सी सैंग हो जाएगा, लेकिन जब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड हो जाएगा, और डिड के आगे जो सिंग है वो सैंग से सिंग बन जाएगा, ठीक है। वर्ब वन का यूज हम करेंगे। सो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड शी सैंग, ओके। नेक्स्ट, डिड ही किल अ स्नेक, ओके। इंटेरोगेटिव में हम कैसे लिखेंगे, डिड का यूज करेंगे, डिड ही किल अ स्नेक, ओके। सो किल, अगर हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही किल्ड अ स्नेक, ओके। सो वर्ब वन विल बी सेकंड हियर, वर्ब टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू इन सिंपल इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, सो जब हम डिड का यूज करेंगे तो जो मेन वर्ब है वो वर्ब वन हो जाएगी, लाइक डिड ही किल अ स्नेक, ओके। ही डिड नॉट सिंग, ओके, ही डिड नॉट सिंग, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पे डिड का यूज है, तो सिंग को हम सैंग नहीं लिखेंगे, सिंग का वर्ब वन नहीं लिखेंगे, तो सिंग का वर्ब वन क्या होता है, सिंग होता है, ठीक है। लाइक ही डिड नॉट सिंग, ओके। जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम कैसे लिखेंगे, ही सैंग, ओके। जब इसको नेगेटिव में चेंज किया तो हम क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट सिंग, ओके। तो वर्ब वन हो जाएगी, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, सिंग, ये वर्ब वन हो जाएगी, ठीक है। जब हम डिड का यूज करेंगे, मीन्स जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्म करेंगे सेंटेंस को, तब वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब वन हो जाएगी, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज दैट टेंस इन विच एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट नो स्पेसिफिक टाइम फॉर द एक्शन, ओके। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है, जहां पे एक्शन कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, बट जो एक्शन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कब एक्शन हुआ है, ठीक है। इंडेफिनिट मीन्स time not clear, okay, not clear, okay. So let's start next form, okay. Past continuous tense, okay, past continuous tense। तो जैसे कि इसके past continuous से ही क्लियर हो रहा है, past means एक्टिविटी कब हुई है, पास्ट में, continuous means कंटिन्यू है, एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है, और कब एक्टिविटी कंटिन्यू है, पास्ट टाइम में, ओके। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन continuing at a particular time or during a particular period in the past, okay. So past continuous tense कौन सा टेंस हुआ, जहाँ पे एक्टिविटी कब होती है, पास्ट में होती है, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो कंटिन्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, ठीक है, जब मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या है, जब आपने उसको देखा तो एक्टिविटी क्या थी, कंटिन्यू थी, ओके। सो पास्ट में जब एक्टिविटी कंटिन्यू होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट के कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब एक्टिविटी कंटिन्यू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग एट होम ऑल डे, ठीक है, कि वो पूरा दिन घर पे वेट कर रहा था, ठीक है। पूरा दिन मीन्स यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम बताया है, और उस टाइम पीरियड में एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। पास्ट में एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है। सो ही वॉज वेटिंग एट होम ऑल डे। सो ही वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, ठीक है, कि जब वो मेरे घर आया तो वो लेटर लिख रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी पास्ट में हुई है, ठीक है, और उस टाइम पीरियड में वो एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब plus verb one plus ing plus object, but remember use was with he she it plus singular noun, okay। जहाँ पे he she it और singular noun होगा वहाँ पे आप was का यूज करेंगे, ठीक है। और verb का यूज कहाँ पे करेंगे, I we you they plus plural noun, ठीक है। सो I we you they plus plural noun के साथ verb का यूज करेंगे, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस was one plus verb one plus ing plus object, okay। So let's take some example. I was reading a novel when my friend came, ठीक है, जब मेरा फ्रेंड आया तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, नॉवेल को रीड कर रहा था, ठीक है।
सो उस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। एक्टिविटी कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, बट एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे, ठीक है, पिछले कल की बात हो रही है, इट वॉज स्नोइंग येस्टरडे। येस्टरडे एक्टिविटी कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, ठीक है, और स्नोफॉल हो रहा है, और स्नोफॉल क्या है यहाँ पे, कंटिन्यू है, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, पास्ट में कंटिन्यू है। सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, ओके, दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। सो एक्टिविटी कब हुई है, पास्ट में हुई है, और यहाँ पे एक्टिविटी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, कंटिन्यू है। सो वी विल राइट हियर दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, यू वर वर्किंग येस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टाइम पे एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, बट उस टाइम पीरियड में आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, वो कंटिन्यू है। वर्किंग मीन्स कंटिन्यू, ठीक है। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में आप आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब वन के साथ, ठीक है। तो किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप क्या करेंगे, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, ठीक है, आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट मीन्स लास्ट नाइट एक्टिविटी कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, ठीक है, और आप उस पीरियड में क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और आपकी जो स्टडी है वो क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। सो एवरीवन वाज क्लैपिंग, ओके, सो एवरीवन क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। सो क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी कंटिन्यू है, क्लैपिंग एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज was were in the beginning of the sentence, ठीक है। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के बिगनिंग में लगाते हैं, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, was were, ओके, बट रिमेंबर यूज was with he she it plus singular noun, okay, and were with I we you they plus plural noun, okay। So let's understand, was he reading, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का कहाँ लगा दिया, सेंटेंस के बिगनिंग में, ठीक है। तो वॉज ही रीडिंग, जब हम इसको सिंपल में यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज रीडिंग, ओके, बट यहाँ पे क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिगनिंग में लगाएंगे और क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वर दे स्लीपिंग, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, ठीक है। वर दे स्लीपिंग जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर स्लीपिंग, ओके। इन इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हम बिगनिंग में लगाएंगे, ठीक है, एंड एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। सो इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, ओके। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, was were, okay, like he was not reading, okay, so with was we use not here, okay, he was not reading, okay. Next, they were not sleeping, so this is negative sentence, okay. So let's move forward. Now we will understand past perfect tense, okay. So past perfect tense is used to express an action completed before a certain moment in the past, ठीक है। So past perfect tense कौन सा टेंस होता है, जहाँ पे एक्सप्रेस किया होता है कि एक्शन पास्ट में क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मीन्स आपके पास टाइम पे, बीते हुए टाइम में वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इट्स फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैड वोन द मैच, ओके, आई हैड वोन द मैच, ओके। सो आई इज द subject here, okay, had helping verb, okay, won verb 3, the match object, okay. So let's take some other example, I had completed my task, ठीक है, कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो मीन्स काम कब कंप्लीट हुआ है, पास्ट में, ठीक है। पास्ट में जब आपके एक्टिविटी कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, टाइम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है, आपके पास्ट में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोला गया है क्योंकि आपकी एक्टिविटी परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ पे, पास्ट में, ठीक है। सो आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, कि मैंने अपना टास्क कब कंप्लीट कर लिया, मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मीन्स आपका टास्क पास्ट में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, तो इवनिंग तक मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया था, ठीक है। सो एक्टिविटी यहाँ पे जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, टास्क कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, ठीक है। वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, ठीक है, कि हमने वीडियो गेम्स खेली थी, कब खेली थी, पास्ट में, और वो एक्टिविटी क्या हो चुकी है, वो एक्शन क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, कि उसने सारे स्नैक्स खा लिए थे, मीन्स एक्टिविटी क्या हो चुकी है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। जॉन हैड फाउंड अ न्यू जॉब, ठीक है, तो जॉन ने न्यू जॉब फाउंड कर ली है, तो एक्टिविटी क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, ठीक है। सो इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी विल यूज हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो जो हैड, जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको हम स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में यूज करेंगे सेंटेंस के, ठीक है। लाइक हैड आई कंप्लीटेड माई टास्क, जब हम इसको कैसे यूज करेंगे, सिंपल में यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, ठीक है। जब इसको नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई कंप्लीटेड माई टास्क, ओके। सो वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, ओके। हैड वी प्लेड वीडियो गेम्स, क्या मैंने वीडियो गेम खेली थी, ठीक है। सो हैड कब हो जाएगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में, ओके। इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो नॉट का यूज कहाँ पे होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय टास्क, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का यूज किया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। वी हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम्स, हमने वीडियो गेम नहीं खेली, ठीक है, तो हैड के साथ हमने नॉट का यूज किया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, past perfect continuous tense is used to express the action that started in the past and continued in the past for some time. It is called past perfect tense, okay. It is also called past perfect progressive sentence, okay. So means आपका past perfect continuous इससे पता लग रहा है, ठीक है, कि past में एक्टिविटी हुई है और इसका टाइम परफेक्ट है, ठीक है, और ये कंटिन्यू चल रही है पास्ट में, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम द प्रपोजिशन फॉर सिंस इज यूज्ड, ठीक है। जब हम टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए हम प्रपोजिशन फॉर और सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर इज यूज्ड व्हेन द पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय द एक्शन इज टू बी मेंशन्ड, ओके। जब टाइम पीरियड बताया गया है सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होता है, ओके। लाइक फॉर 15 मिनट, फॉर हाफ एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। सो दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। सो विद पीरियड ऑफ टाइम you will use for, okay. So let's understand where we will use since, okay. So since is used with the fixed time, like since Sunday, since breakfast, since yesterday, since Diwali, since January 2010, since the 1st of May, okay. So its formula is subject plus had been plus verb 1 plus since for plus time, okay. So let's take some example. He had been playing football for 2 hours, okay, कि उसने 2 hours से वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या आता है, से इतने टाइम से खेल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो एक्टिविटी है वो पास्ट में हो रही थी और वो क्या है, कंटिन्यू है, और उसके साथ क्या है, टाइम पीरियड भी है, ठीक है। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, मीन्स वो 2 hours से क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। द चाइल्ड हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, कि चाइल्ड मॉर्निंग से क्या कर रहा है, खेल रहा था, ठीक है। तो चाइल्ड मॉर्निंग से खेल रहा था, तो मीन्स पास्ट की एक्टिविटी अगर कंटिन्यू है और वहाँ पे टाइम पीरियड भी है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस फॉर का यूज करेंगे फिक्स टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। सो मॉर्निंग के साथ तो हम यूज करेंगे सिंस, ओके। आई हैड बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम सिंस August 2018, okay. So here is fixed time, August 2018, then we will use a since, okay. I had been playing my favorite game since August 2018, ठीक है, कि मैं अगस्त 2018 से अपनी फेवरेट गेम खेल रहा था, ठीक है। मीन्स पास्ट में एक्टिविटी हो रही है और पास्ट में क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। सो दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, कि वो इस ऑफिस में लास्ट ईयर से वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है लास्ट ईयर,
So we will use a since. Okay. So I hope you all have understood. So that's all for today.